गुड मॉर्निंग गाइस। आज तो मॉर्निंग सच में बहुत ज्यादा ही गुड है। वेदर बहुत अच्छा है। मजा आती है पढ़ने में। गुड मॉर्निंग गाइस। अनमोल, आपने बहुत अच्छा न्यूज बताया है। ठीक है। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। कुछ क्वेश्चन है आपको किसी चीज के बारे में तो पूछ लो इन 1-2 मिनट्स, देन वी विल स्टार्ट। वेरी गुड स्वयं। दैट इज अ वेरी गुड न्यूज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। यही पढ़ना चाहिए था। ऋषित, आई हाफ एन आवर इज अ गुड रीड, ठीक है, बिकॉज you don't have to go for any kind of analysis while reading newspaper. You just have to note down some important facts. So 30 minutes should be good enough. Editorials में भी सिर्फ you have to look out for important factual questions, ठीक है, और the broad idea, ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम इन द पेपर ऑफ क्लैट, the questions were about Chabahar Port and how can India access the Central Asian countries through Afghanistan and Iran, ठीक है। So आप अगर questions देखोगे then they were very factual and only one analytical question was there. Now that was such an obvious question and answer, that one analytical question, कि वो आराम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। So you should have a broader idea. बहुत डिटेल में सबके एडिटोरियल्स आर जनरली वेरी एक्सपर्ट ओपिनियंस, तो हमें ओपिनियंस नहीं लेने हैं. वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रॉड थीम एंड द फैक्चुअल पार्ट. ठीक है. तालिबान को पहले संभलने तो दो, फिर पढ़ेंगे उनके बारे में. ठीक है. तालिबान का इश्यू हमने पहले डिस्कस किया था. Some factual things and the presence of Taliban, how it affects the Indian national interest and national security, वो हमने पढ़ा था. We can talk in brief about it. ठीक है. आज थोड़ा कुछ है तालिबान के बारे में. They have formed a new ministry, so we should know the name of some important ministers. ठीक है. So that we will do today. Okay guys, anything else? I am starting now. ठीक है. चलो. Okay, so I have always said that any kind of weapons that are being bought, developed, manufactured, abhi don't give any other questions, because now we are starting to discuss the topics. जो डिस्कस मैं करूं उसके रिगार्डिंग आपको कुछ पता ना चले तो उसके क्वेश्चन पूछना. ठीक है. चलो. So as I have said, like you have to learn about any kind of weapons that are being purchased by India from any other country, or that is manufactured and developed in India indigenously. ठीक है. So recently Barak missile system is handed over to Indian Air Force. Now, since last 2 years, this particular missile system, it is not a missile, it is a missile system, okay, was in news. But the main important thing that happened right now is that this missile has been finally, this system has been handed over to Indian Air Force for its use. Okay. So we have to know about this system.
बेसिकली इट इज अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, मिसाइल कुछ टाइप्स की होती है, एक होती है सरफेस टू सरफेस, एक होती है सरफेस टू एयर, और एक होती है एयर टू एयर। नाउ दिस पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम, बराक 8 मिसाइल सिस्टम, इज अ सरफेस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ठीक है, और उसकी रेंज क्या है? 70 किलोमीटर। ये पता होना चाहिए, 70 किलोमीटर आपको याद रखना है। इसका मतलब ये मिसाइल सिस्टम कोई भी एरियल टारगेट को विद इन द रेंज ऑफ 70 किलोमीटर, एनी एरियल टारगेट, वो फाइटर जेट हो सकता है, मिसाइल हो सकता है, या यूएवी हो सकता है, इट कैन शूट दैट पर्टिकुलर एरियल थ्रेट इन द रेंज ऑफ 70 किलोमीटर। ठीक है, now there are two information in the second paragraph. One is about the chief of DRDO. You should know the chief of DRDO is G Satish Reddy. ठीक है, he handed over the first firing unit to the head of the Indian Air Force, जिन्हें हम चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स कहते हैं, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज इंडियन एयरफोर्स पूरी की पूरी ये कमांड करते हैं। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, that this missile system has been developed by DRDO and Israel Aerospace Industries. Basically, it is a kind of a joint venture between India and Israel. ये दोनों ने मिलके ये सिस्टम बनाई है। ठीक है, लिख लो। मिसाइल के बारे में, मिसाइल सिस्टम के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, लिख लो। एनी क्वेश्चंस इन दिस गाइस? Cost of the missile is not important. And as far as I know, it was some in some thousands of crore. ठीक है, it was in some thousands of crore. और थोड़ा जल्दी लिखा करो। एनी क्वेश्चन इन दिस गाइस? पता चल गया ना सबको? ठीक है, लिख लिया सबने? शुड आई गो अहेड? एवरीबॉडी? ठीक है, चलो, आई एम गोइंग अहेड नाउ। ठीक है, ओके, नाउ राजनाथ सिंह एंड नितिन गडकरी। Rajnath Singh is our defense minister and Nitin Gadkari, he is our road and transport highway minister. For the first time in India, a highway which is called National Highway 925A, located near Barmer in Rajasthan, along the border of Pakistan, that particular highway is developed in such a way that any aircraft, any helicopter of Indian Army, of Indian Air Force or any other unit can land on that particular highway and also can take off from that particular highway. ठीक है, this is for the first time that this kind of facility has been developed. It is called as emergency landing facility. कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन द सत्ता गंधव स्ट्रेच नियर बार्मर ऑन नेशनल हाईवे 925A. ठीक है, लिख लो। इंडियन मिलिट्री का कोई भी एयरक्राफ्ट लैंड कर सके और टेक ऑफ कर सके, ताकि भुज जैसी सिचुएशन ना हो जाए। भुज पिक्चर देखा है ना आप सबने? ठीक है, व्हाट इफ enemy destroys our airfield?
that we should have alternate means from where we can take off and land. ठीक है? Yes, Shruti, a few years back, यमुना एक्सप्रेस हाईवे में भी जेट को लैंड किया गया था, but that was not constructed with that particular idea in the mind. This particular highway was constructed by keeping that this idea has to be implemented here. ठीक है? ऐसा अगर कोई स्किल्ड पायलट है तो वो तो अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे पे भी लैंड कर सकता है. ठीक है? लेकिन बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे को उस नजरिए से नहीं बनाया गया. ये पूरा का पूरा स्ट्रेच was developed keeping this perspective in mind. ठीक है? इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड्स. ठीक है? Sattagandhav is the name of the place. Cost, definitely it will be high, but this has to be done. Okay, guys. चलो आगे. ठीक है? चलो. United Nations resolution on Afghanistan. I have two questions for you. ठीक है? मुझे इन दोनों का आंसर आप लोग बताओ. उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या नहीं, या फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट एनीथिंग. It was proposed under whose presidency? Very good. We discussed about this particular news in the previous lecture. It was proposed under the presidency of India. ठीक है? The answer is India. ठीक है? And the most important thing that the resolution, हर एक resolution जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एडॉप्ट करती है उसका एक नंबर होता है. दिस वाज रेजोल्यूशन नंबर 2593. ठीक है? Which permanent members were not present or which abstained from voting? As we know, there were 13 yes and 2 permanent members. They abstained from voting. Which countries I am referring to? Very good, guys. It was China and Russia. They abstained from voting. So basically, the resolution was adopted by a majority of 13-0. ठीक है? 13 yes and 0 no. ठीक है? And who is the president of the United Nations Security Council for this month of September? हमने last time इसके बारे में बात की थी. India was president in the month of August. The answer is Ireland. मैंने आपको बताया था आयरलैंड. एंड इंडिया ने किसके पास से ली थी प्रेसिडेंसी? द आंसर इज फ्रांस. ठीक है? We took the presidency from France and we passed on the presidency to Ireland. ठीक है? So don't get confused and get it right. ठीक है? चलो आगे चलेंगे. Tejas Chauhan appointed as regional director of International Court of Arbitration. वर्ल्ड में टुडे भी, पहले मेरी बात सुन लो तो आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता क्या है. ठीक है? टुडे वी लिव इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. द ऑपरेशन ऑफ टाटा ग्रुप इज जस्ट नॉट लिमिटेड इन इंडिया, but we have operation
in other countries and over other jurisdiction. So what if Tata has invested in some African country and they have some commercial dispute about tax and revenue sharing? So what can be done is that both the countries or the firm, they can move to International Court of Arbitration. ठीक है? And then arbitration मतलब एक टाइप का alternate dispute resolution mechanism है. Without going to the court, आर्बिट्रेशन में आप दो पार्टी के बीच के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. ठीक है? So in International Court of Arbitration, an Indian person is appointed as the regional director. कौन है उनका नाम? तेजस चौहान. ठीक है? He will be the second Indian to be appointed to the post of regional director. ठीक है? उनकी ऑफिस कहां पे होगी? इन सिंगापुर. एंड ही विल टेक ओवर फ्रॉम अभिनव भूषण. ठीक है? लिख लो. यस स्वयं रिसेंटली हमारे लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू. इवन ही सेड दैट वी विल ब्रिंग अ लॉ इन पार्लियामेंट. वी विल ब्रिंग अ बिल इन पार्लियामेंट, सॉरी, फॉर आर्बिट्रेशन एंड अदर एडीआर मैकेनिज्म्स. ठीक है? लिख लो. एनी क्वेश्चन इन दिस गाइस? व्हाट इज आईसीए आपको मैंने बताया. ठीक है? एनी इंडियन पर्सन और इंडियन ओरिजिन पर्सन getting appointed in any international institution has to be known, has to be studied. ठीक है? हाँ विजय रूपानी नहीं रहे. नहीं रहने का मतलब है जिंदा है लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं. ठीक है? ऐसा नहीं है. चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं. ठीक है? ऐसे यार घबरा मत तो यार. ठीक है? अरे भाई यूएस ओपन को होने तो दो, जीतने तो दो किसी को. ठीक है? ओके गाइस, रिटर्न. शुड आई गो अहेड? चलो लेट्स गो अहेड. CoWIN develops a new API to enable entities to check an individual's vaccination status. Basically, जो कोविन बहुत बढ़िया सा ऐप बनाया था जिसमें से किसी को भी वैक्सीन नहीं मिली है लेकिन बहुत मेहनत से मिली है, उसमें अभी एक न्यू फीचर ऐड किया गया है in which you can see whether this person is vaccinated or not. ठीक है? Know your customers or client vaccination status. ठीक है? लिख लो. आप में से भी काफी सारे लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे फॉर योर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो आप लोग भी आर्बिट्रेशन वो सब करना जोरदार एकदम. ठीक है? इट इज गुड फील्ड्स, इमर्जिंग फील्ड्स. आर्बिट्रेशन काफी चलता है आजकल. ठीक है? द जस्टिस रोहिंटन Nariman is considered as one of the best judges in the cases related to arbitration, basically. ठीक है? Okay, guys, लिख लिया? Should I go ahead?
आर्बिट्रेशन होता क्या है मैं आपको बताता हूं, चलो एक सिंपल सी भाषा में बता देता हूं, ठीक है। आपके भाई बहन के साथ आप जब झगड़ते हो कि साइकिल मैं चलाऊंगा, नहीं साइकिल मैं चलाऊंगा, फिर आप दोनों झगड़ते हुए जब अपने मम्मी पापा के पास जाते हो ना कि मम्मी पापा मेरे को चलाना है, दूसरा बच्चा कहेगा मुझे चलाना है, तो मम्मी पापा बाद में जो करते हैं, दोनों को शांत करवाते हैं, दोनों की बातें सुनते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि भाई तू बड़ा है तो अभी छोटे को आधे घंटे चलाने दे साइकिल, और बाद में तू आधा घंटा चला लेना। तो ये मम्मी पापा ने ये जो किया ना, प्रॉब्लम सॉल्व आराम से बातें करके, उसे कहते हैं आर्बिट्रेशन इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज, ठीक है। इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज मैंने बताया आपको आर्बिट्रेशन क्या होता है, ठीक है। आर्बिट्रेशन इज अ बिट डिफरेंट देन गोइंग इनटू कोर्ट्स, ठीक है। थोड़ा सा अलग होता है वो सिस्टम। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ओके हाँ, आगे का जो न्यूज है, मुझे बताओ, ब्रिक्स बैंक है जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? ब्रिक्स बैंक है जिसको हम न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, वेरी गुड। ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट आर द नेम ऑफ द सेम बैंक, लेकिन मैंने क्या सिखाया था? ब्रिक्स एस, सो एस फॉर शंघाई, ठीक है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट multilateral bank which is called Asian Development Bank. Now its headquarter is located in, कहां पे लोकेटेड है? जिसने स्टैटिक बुक पढ़ी है IQ आइडियाज की, उसमें भी अच्छे से मेंशन किया गया है, ठीक है। इट इज इन मनीला, फिलीपाइंस, ठीक है। चलो, ये मैंने आपके लिए एक फोटो रखा है, ये प्रेसिडेंट का नाम गलत है। प्रेसिडेंट, द नेम ऑफ द करंट प्रेसिडेंट इज मासासुगु आसाकावा। मार्कोस क्रोजोई तो ब्रिक्स बैंक के हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के हैं प्रेसिडेंट। एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज फॉर्म इन 1966। हेडक्वार्टर कहां पे है? मैक्रो मनीला, फिलीपाइंस, ठीक है। कौन से रीजन में काम करता है ये बैंक? एशिया पैसिफिक, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ द कंट्री, एग्जैक्ट नंबर याद रखना इज नॉट इंपॉर्टेंट। द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट इज मासा, हमारे होते हैं ना मासा मासी, वैसे मासा सुगु आसाकावा, कावासाकी की जगह आसाकावा, ठीक है। लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक्स है। हमने दो बैंक बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, अभी एक और बाकी है, ठीक है। हाँ, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? what is the purpose that I am teaching this? Because recently Asian Development Bank has given loans to some important projects. One such project was in Jharkhand to supply urban tap water to the urban areas of Jharkhand. Then some loan has also been given to Tamil Nadu government for various developmental purposes, ठीक है। ये सारी बैंक्स है, दे प्रोवाइड मनी टू द डेवलपिंग नेशंस फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। लिख लो, और कंफ्यूज मत होना अगर मैं एडीबी और एनडीबी के बीच में कुछ भी पूछूं तो, ठीक है। नाम प्रेसिडेंट का इन दिस पर्टिकुलर इमेज इज रॉन्ग। आई टोल्ड यू द नेम ऑफ द करंट प्रेसिडेंट, ठीक है। लिख लो, New Development Bank is the name of BRICS Bank. BRICS Bank and New Development Bank are the same entities. ठीक है। मासा सुगु आसाकावा, लिख लिया? हाँ ऋषित, लिखो लिखो, जल्दी लिखो लेकिन थोड़ा, ठीक है। ओके, डन।
चलो गाइस, गोइंग अहेड नाउ, ठीक है। चलो, there is this project which is called Poldex. This is a very unique project that will be conducted by the Oregon State University in USA. Now, they have decided that they will send an expedition to Antarctica and they will collect the oldest ice from Antarctica. Now, that oldest ice will help them to understand that how Earth climate change has changed over the past several million years. ठीक है? This was announced by National Science Foundation, ठीक है, in the Oregon State University, ठीक है। ऐसे जितने भी मिशन होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बारे में हमें ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। And this mission is associated with climate change. Now, climate change is the most hotly debated topics of our time. So, उसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट चेंज तो मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाया है, like what are the effects of climate change that are witnessed in a global scale, ठीक है। Heat dome was one such effect that was recently witnessed, ठीक है, in the northern America, in some Northern American and Canadian states, ठीक है। बारिश कम होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, जहां पे नहीं होनी चाहिए वहां पे होती है, जहां पे होनी चाहिए वहां पे नहीं होती है। These are all the reasons and changes that scientists attribute to climate change, ठीक है। अच्छा, tell me the name of the first Indian observatory that was established in Antarctica for the purpose of research and development. एंटार्क्टिका में इंडिया की सबसे पहली कौन सी रिसर्च स्टेशन था जो एस्टेब्लिश किया गया था? सिद्धांत, खुशी, वेरी गुड। तीर्थ, वेरी गुड। प्लीज राइट डाउन, अच्छे से लिखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी वॉज एस्टेब्लिश इन 1983 and it was named as Dakshin Gangotri. Dakshin Gangotri. Now, after some years, that become dysfunctional. ठीक है? So उसके बाद दो नए रिसर्च स्टेशन बनाए गए। एक का नाम था मैत्री and the latest is भारती, ठीक है। सबसे पहली दक्षिण गंगोत्री वो अब काम नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद मैत्री एंड उसके बाद भारती। एम आई क्लियर गाइस? दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन। एंड द ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड एज हिमाद्री। ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिमाद्री, जो नॉर्थ पोल के पास जो ऑब्जर्वेटरी है उसका नाम है हिमाद्री। मैत्री एंड भारती, दे आर फंक्शनल, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, चले आगे, ठीक है। जो मैंने अभी 4 ऑब्जर्वेटरी के नाम बताए, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू नोट इट डाउन। चलो आगे चलेंगे। आर्कटिक वाली का नाम है हिमाद्री। 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड, ठीक है।
This is a international award given to young people who work for the development and the betterment of environment and ecology. ये सबसे पहली बात हुई. फिर हमें पता होना चाहिए ये अवार्ड देता कौन है. This award is given by Action for Nature. This is a NGO. It is an institution which recognizes contribution of young people for the betterment of ecology. Now, an Indian person who is just 12-year old, an environmental activist, his name is Ayan Shankta from Mumbai, has been given this award. So हमें सोचना चाहिए that ये भाई ने ऐसा क्या किया है. So basically he is staying near the region called Powai in Mumbai. Now Powai Lake is a very famous lake in Mumbai. Basically once upon a time it used to provide drinking water to the city of Mumbai. लेकिन right now it is used as a garbage disposal site. ठीक है. So basically this person work for this issue. He made sure that ये पवई लेक को ऐसा ट्रीट ना करे, अच्छे से ट्रीट करे. ठीक है. And he began the project called conservation and rehabilitation of Powai Lake. ठीक है. Is for this particular reason he has been given this award. ठीक है. He won the 3rd place in 8 to 14 years age group of category. ठीक है. लिख लो. Any questions? Powai is the same place where IIT Bombay is located. ट्वेल्व ईयर बॉय तो बहुत कुछ कर सकता है. अपनी ग्रेटा को ले लो, ग्रेटा द ग्रेट को देख लो, वो तो कितनी छोटी थी, देखो क्या क्या कर लिया उसने. ठीक है. अभी आप में से किसी की इच्छा है तो हम भी साबरमती चलते हैं. ठीक है. साबरमती इज ऑल्सो द डंपिंग यार्ड ऑफ अहमदाबाद. ठीक है. रिवर फ्रंट को छोड़ के. अभी कल गया था रिवर फ्रंट पे, तो पानी ब्लू होता है या ग्रीन होता है वो मैं कंफ्यूज हो गया. मैंने तो सुना था ब्लू होता है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई. एक्चुअली वाटर इज कलरलेस, लेकिन मस्त ग्रीन ग्रीन कलर का पानी था. तो 2 मिनट में वापस चला गया कि ये नहीं चलेगा, अपने को अपने घर पे जाके अपना पानी देखेंगे. ठीक है. वो क्लियर तो होता है कम से कम. बहुत 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 तकलीफ है. अभी कांकरिया एक बार जाके आता हूँ. अगर वो गंदा होगा ना तो मैं भी ऐसा कुछ साफ वाफ कर दूंगा, तो नेक्स्ट टाइम आपको मेरा नाम पढ़ने को मिलेगा. पार्थ सर भी कुछ जोरदार करके आए हैं कांकरिया में. ठीक है. अब पानी नहीं है, मैं जानता हूँ. आई माई हाउस इज वेरी क्लोज टू वस्त्रापुर लेक. अगर वस्त्रापुर लेक में छलांग लगाओ तो सिर फूक जाएगा. तो पानी नहीं है अंदर. ठीक है. वो तो तकलीफ वाला केस है. तो मेरे को लगता है थोड़ा भी पानी निकाल दो, हम सब क्रिकेट फुटबॉल खेलेंगे वहां पे अंदर लेक में जाके. हो गया. अच्छा है, एक जमाने में बहुत अच्छा था मुस्ताफुल लेक. कभी यार वो फैमिली प्लेस नहीं है, दिक्कत वही होती है. एक्शन फॉर नेचर पीपीटी पढ़ो, आपको पता चलेगा किसने ये अवार्ड दिया है. मैंने 2 बार बोला. एक्शन फॉर नेचर, इट्स एन एनजीओ. ठीक है. ओके गाइस, एवरीबॉडी लिख लिया? शुड आई गो अहेड? ठीक है. चलो.
अच्छा, सबने विजय रूपाणी के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी जिस जो मुझे इसका आंसर दे तो मजा आ जाए। विजय रूपाणी के ऊपर ही क्वेश्चन है। और चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू, सीएम जो होते हैं स्टेट के, वो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में। किसको सबमिट करते हैं? द गवर्नर, जो भी गवर्नर है स्टेट का, द चीफ मिनिस्टर, उनको जाके अपना रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है, कि भाई अब मेरे से काम नहीं होता है, मेरे को पैर में दुख रहा है, सो टाटा बाय बाय, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। देखो, वी ऑल नो अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। नाउ इफ यू सी, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन was flourishing even before 4,000 years ago, ठीक है। So recently a big civilization is discovered in the state of Tamil Nadu. Now you should know by common sense and general knowledge that the great civilization in the world is always located near a river bank. जहां पे कोई अच्छी रिवर होती है, वहां पे ही अर्ली सिविलाइजेशन एंड सेटलमेंट्स आर लोकेटेड, ठीक है। सो तमिलनाडु में a river which is called Porunai, or also known as Thamir Barani, उस पर्टिकुलर रिवर के आजू बाजू एक सिविलाइजेशन इज डिस्कवर्ड विच इज क्लोज टू 3,200 इयर्स ओल्ड, ठीक है। कहां पे ये डिस्कवर किया गया है? इन सिवाकलाई, ट्यूटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट। ट्यूटिकोरिन इज अ फेमस डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चला? by doing carbon dating. Now, to find out the age of a particular object, a scientific technology is used which is called carbon dating, ठीक है। वो मुझे आपको डेटिंग क्या होता है, कार्बन जब डिस्ट्रॉय होता है, कार्बन अपने आप को तो उसके बेसिस पे जो डीके होता है, उसके बेसिस पे हमें पता चल सकता है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना पुराना है, ठीक है। नाउ in the while conducting the excavation, it has been seen that they used to have some kind of interaction with the Indus Valley civilization also, ठीक है। But you have to understand that Indus Valley civilization is located in the north of India, and this civilization is found in the extreme south of India, ठीक है। So there must be some kind of connection between the Indus Valley civilization, South India and Sri Lanka. लिख लो, Indus Valley civilization is located on the bank of which river? आंसर तो पता होना चाहिए, ठीक है। इंडस। लिख लो, ये काफी अच्छा न्यूज है, ठीक है। Mesopotamia civilization is located near the bank of which river? Very nice question, very nice question. They were located between two rivers which is called Euphrates and Tigris. Euphrates and Tigris. Very good guys, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, ठीक है। इवन द रिवर नाइल, जो हमारे फेरोज वेरोज है, जोरदार वाले पिरामिड वाले भाई लोग, ठीक है, वो नाइल के they were the next civilization flourish on the bank of river Nile, ठीक है। लिख लो, हाँ, इजिप्शियन सिविलाइजेशन दैट वाज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नाइल, ठीक है।
दिस इज अ इम्पोर्टेंट न्यूज, ठीक है। हाँ देखो क्रिश, रोनाल्डो हैज द हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल, वो सबको पता है, ठीक है। और उतना ही पता होना चाहिए, बस इसके ज्यादा डिटेल में नहीं। अगर ऐसा स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछना है तो इतना पूछ सकते हैं दैट विच इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर हैज द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट गोल्स, ठीक है। वो सबको पता है, रोनाल्डो भाई है अपने, ठीक है। हो जाएगा काम। कल तो मेरे आधे से ज्यादा दोस्त पूरा घुस के बैठे थे टीवी के अंदर। वो कल मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैच थी, तो गणपति को भी जल्दी विसर्जन कर दिया कि आज मैच देखेंगे। मैंने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा है सिस्टम। लास्ट पैराग्राफ में ये याद रखना है that it had some interactions between the civilization and this पौरानी रिवर सिविलाइजेशन, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया, हम आगे चले। लिख लिया सबने? शुड आई गो एड? ओके, recently which country launched a mission which is called hope mission? हमने पढ़ा है इसके बारे में। कौन सी कंट्री ने थोड़े महीने पहले होप मिशन करके एक मिशन लॉन्च किया था? वेरी गुड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड होप मिशन इज एसोसिएटेड विथ विच प्लैनेट? वेरी गुड, मार्स, ठीक है। द मिशन वॉज लॉन्च टू स्टडी द एटमोस्फियर ऑफ मार्स। मार्स का एटमोस्फियर हमें स्टडी करना है, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। लिख लिया ये सबने? इसके पीछे थोड़ी और न्यूज है इसके बारे में। चलो, हाँ, नाउ सम न्यूज अबाउट दिस पर्टिकुलर रिवर। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, देन वी विल नो दैट इंडस वैली, दैट द source of Indus is located in the Himalayas. In the same way, the source of this river, Porurani, is in Western Ghats, ठीक है। वेस्टर्न घाट से ये रिवर निकलती है एंड इट फ्लोज थ्रू तमिलनाडु, ठीक है। एंड इट इज द शॉर्टेस्ट रिवर इन तमिलनाडु, ठीक है। एंड द माउथ दिस पर्टिकुलर रिवर, माउथ मतलब जहां पे ये रिवर खत्म हो जाती है, एंड ड्रेन्स इटसेल्फ इनटू सी। दैट माउथ इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ मनार, सॉरी मनार, यहाँ पे आर रह गया है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। लिख लो, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स, flows through Tamil Nadu. It is the shortest river of Tamil Nadu, and then it drains itself in Gulf of Mannar. Yes, खुशी, you are right. होप मिशन लॉन्च करने के बाद यूएई इज द फिफ्थ कंट्री टू डू सच अ थिंग, ठीक है। सबसे पहले किया है नासा ने, देन रशिया, देन यूरोपियन एजेंसी, एंड देन फोर्थ पे इंडिया था, ठीक है। एंड नाउ यूएई इज द फिफ्थ, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया, चले आगे। सबने लिख लिया? ठीक है, ओके गाइस, लेट्स गो अहेड। देखो,
पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, तो आपको न्यूज बहुत आसानी से पता चलेगा, ठीक है। आइस इन द स्काई प्रोजेक्ट, देखो, वी ऑल नो दैट रिसेंटली our along with the border of Pakistan in Jammu and Kashmir, near some important Air Force station, we saw some unmanned aerial vehicles in that locality. Now that will act as a threat to our defense establishment and to our national interest. So basically, to tackle any threats from the sky, we should have extremely proper and accurate surveillance in the sky. ठीक है? So under this project, which is called Eyes in the Sky, as the name itself says, we are going to develop and upgrade new 6 aerial early warning and communication system, AEW&C, एरियल अर्ली वार्निंग एंड कम्युनिकेशन। बेसिकली हम ऐसे सिस्टम डेवलप करेंगे दैट विल बी माउंटेड ऑन अवर एयरक्राफ्ट, ताकि अगर कोई थ्रेट आता है फ्रॉम द स्काई, देन अवर डिफेंस एजेंसीज विल गेट अ हेड स्टार्ट, विल गेट एन अलर्ट, ठीक है। नाउ दिस प्रोजेक्ट इज डेवलप, दिस 6 early warning system will be developed by DRDO, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम कौन डेवलप करेगा? आइस इन द स्काई के प्रोजेक्ट के अंडर जो 6 अर्ली वार्निंग सिस्टम बनानी है, उसको डेवलप कौन करेगा? DRDO, ठीक है। ये सिस्टम को जब डेवलप करोगे, दैट विल प्रोवाइड इंडिया a 360-degree coverage and a long range from where we can track any threats, ठीक है। ये सिस्टम बना के उसको माउंट, मतलब उसको इंस्टॉल कहां पे करेंगे? ऑन एयरबस 321 एंड एयरबस 319 प्लेन्स ऑफ एयर इंडिया फ्लीट, ठीक है। लिख लो। एनी क्वेश्चंस? आपको पता चल गया कि ये सिस्टम क्या है बेसिकली? आपको अगर ऐसे मैं बताया तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये होगा क्या, ठीक है। Eyes in the sky, basically we should able to see any threat or any issue that is coming from the sky, ठीक है। And this whole system will be developed by DRDO. Any questions in this, guys? कुछ doubt? Anything that is done by DRDO and ISRO, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। DRDO and ISRO कुछ भी करता है। देखो, नेत्र का मतलब क्या है? आइज। बेसिकली ये नेत्र एक अर्लियर वर्जन था ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। हमने पहले सबसे पहले नेत्र बनाया था टू ट्रैक एरियल थ्रेट्स, ठीक है। बट एरिया जो नेत्र था सिस्टम, वो हमें बहुत ही कम रेंज में ऑपरेट कर पाता था। इट वाज नॉट अ लॉन्ग रेंज इंस्ट्रूमेंट एंड वो हमें 360 डिग्री कवरेज नहीं दे पाता था। नेत्र यूज्ड टू प्रोवाइड ओनली 250 डिग्री कवरेज। सो ये ड्रॉबैक को दूर करने के लिए आइस इन स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। नाउ अंडर दिस प्रोजेक्ट द अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये उस तरह से डेवलप किया जाएगा दैट विल प्रोवाइड यू 360 डिग्री कवरेज एंड फॉर लॉन्ग रेंज, ठीक है। नाउ अर्ली वार्निंग सिस्टम इज लाइक अ स्मॉल सिस्टम दैट हैज टू बी इंस्टॉल्ड ऑन सम एयरक्राफ्ट। मतलब अगर सपोज कर लो कि आपके पास कोई एयरबस है या आपके पास कोई प्लेन है, एनी प्लेन, तो आपको वो सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा। अंडरस्टूड? दैट विल बी माउंटेड। जैसे कि किसी भी एयरक्राफ्ट में ऑटो पायलट जो होता है, ऑटो पायलट मोड, जिसमें पायलट सिर्फ बैठा रहता है, वो इंस्टॉल करना पड़ता है। पता चला?
so that aircraft can function in an autopilot mode. ठीक है, ये सिस्टम जो डेवलप की है उसे इंस्टॉल की जाएगी इन एयरबस. लिख लिया गाइस? एवरीबडी रिटर्न एंड अंडरस्टूड? शुड आई गो अहेड? ठीक है, चलो अभी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनना. आपने रिसेंटली देखा होगा दैट सम ऑफ द गवर्नर्स वेर अपॉइंटेड रिसेंटली, ठीक है, एंड कुछ लोगों ने रिजाइन कर दिया है. सो माय क्वेश्चन टू यू इज, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स? डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? वेरी गुड. प्लीज राइट डाउन दैट गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा. नाउ टेल मी, अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, वो अपनी मर्जी से क्या किसी को भी प्रेसिडेंट बना सकते हैं कि ये मेरे को इंसान पसंद है इसको बना लो प्रेसिडेंट गुजरात का? ठीक है, द आंसर इज नो. बेसिकली president will act on the aid and advice of the council of ministers headed by the prime minister. President will work on the aid and advice of the council of ministers headed by the prime minister. ठीक है, so जो council of minister prime minister कहते हैं वो ही president करता है. ठीक है, because Prime Minister is the real executive and President is just a nominal executive. ये पता चल गया सबको? Now, गवर्नर को मजा नहीं आ रहा कि ये भाई अपने को नहीं चलेगा, मेरे को गोवा जाने का है पार्टी करने, तो फिर वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? गवर्नर. गवर्नर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा कि अपने को नहीं पाएगा ये? वेरी गुड. द गवर्नर विल सेंड हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, क्लियर? ऑफ कोर्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज मोर पावर. ठीक है, प्रेसिडेंट को टाइम पास करने के लिए रखा है, वो सही सिक्का करता है. ठीक है, ऐसे बैठ के. Yes, there are no real powers. ठीक है, हाँ ये सब तो टाइटल दिए जाते हैं टाइम पास करने के लिए, तो प्रेसिडेंट को भी थोड़ा अच्छा लगे कि इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ अवर कंट्री, उसको भी ऐसा कुछ तो मिलना चाहिए ना यार, इतना बड़ा घर है. ठीक है, yes, the president of India is the supreme commander of the Indian armed force. ये बात हमेशा याद रखना. The president is the supreme commander of the Indian armed forces. ठीक है, चलो one more important question you have to answer और आपको लिखना है. ठीक है, अभी प्रेसिडेंट को बोले, अगर प्रेसिडेंट कल बोले कि भाई मेरे को नहीं करने का है काम, मेरे को कश्मीर घूमने जाने का है, ठीक है, तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन देके भेजेगा? He will send his resignation letter to which person? The answer is vice president. सब लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखा है, कुछ लोगों ने पीएम लिखा है. द आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट. गलती मत करना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया एवरीबॉडी? चलो आगे चलेंगे.
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, बिकॉज आप लोग अगले साल एग्जाम दोगे 2022 में, और ये 2023 में इंडिया हैज सेड दैट वी विल होस्ट द फर्स्ट एवर G20 summit in 2023. G20 stands for Global 20. It is a group of 19 countries and European Union. G20 is a group of 19 countries and European Union. ठीक है, इंडिया कब होस्ट करेगा? In 2023 and will hold the presidency of the group from December 1, 2022. Summit हम करेंगे organize in 2023, but we will be the president of this group in the year from December 1, 2022. Now the next important point, that Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has been appointed as India's Sherpa for the Global 20. आप में से किसको याद है शेरपा क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, याद है, मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। मैं शॉर्ट में समझाऊंगा इन लेमैन लैंग्वेज। एक बात समझ लो, प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर मिलते हैं जी जिनपिंग को, then they will just talk about some important matters and they will just take some important decisions कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। बट उस पूरी मीटिंग में क्या डिस्कस करना है, जैसे कि दो लीडर्स जब मिलेंगे तो सबसे पहली बात वो आधे घंटे में क्या डिस्कस करेंगे, ऑन विच टॉपिक्स दे विल टॉक अबाउट। फिर आधे घंटे के बाद जो डिसीजंस लिए गए हैं वो क्या लिए गए हैं, उसको इंप्लीमेंट करना, ये सारा का सारा ऑफिशियल वर्क जो करता है उसे हम कहते हैं शेरपा। ठीक है, बेसिकली चाय ये लोग पीते हैं लेकिन काम जो पीछे करता है विच इज दैट पर्सन इज कॉल्ड शेरपा। ठीक है, सो पीयूष गोयल विल बी द शेरपा फॉर ग्लोबल 20 एंड ही रिप्लेस सुरेश प्रभु एज इंडिया ग्लोबल 20 शेरपा। ठीक है, लिख लो। इसके पीछे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज रिगार्डिंग G20 ओनली, वो हम पढ़ेंगे, पहले इतना लिख लो। ठीक है, समिट कब और हेल्ड करेंगे हम 2023 में, लेकिन हम G20 ग्रुप के प्रेसिडेंट कब बन जाएंगे, इन December 1, 2020। ठीक है, लिख लो इतना। हो गया एवरीबडी? आने खुशी तीन कंट्रीज नेम याद रखना, इट्स वेरी चैलेंजिंग टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं आता। ठीक है, आई हैव ब्रॉड आइडिया विच कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, पूरी की पूरी 19 नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद, बट आई हैव अ ब्रीफ आइडिया, आई हैव अ ब्रॉड आइडिया। ठीक है, कि कौन सा कंट्री है कौन सा कंट्री नहीं है। एंड आपको एक बात बताता हूँ, लास्ट ईयर इन यूपीएससी दे आस्क अ क्वेश्चन अबाउट G20 कंट्रीज, और नीचे 4 ऑप्शन दिए थे इन एग्जामिनेशन, दैट इसमें से कौन सा कंट्री ग्लोबल 20 का मेंबर नहीं है। सो इट इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग टू रिमेंबर 19 कंट्रीज। ठीक है, बट मेजरली Global 20 is a group of countries which are of emerging
इकोनॉमी, जो इकोनॉमी जो इमर्ज कर रही है वर्ल्ड में, ठीक है, उनका ग्रुप है, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया? शुड आई गो हेड एवरीबॉडी? ओके, नाउ गाइस अंडरस्टूड। मेरी बात ध्यान से सुनो, तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता चल जाएगा। जैसा कि हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देखा दैट वी टुक द प्रेसिडेंसी फ्रॉम फ्रांस, ठीक है, इंडिया टुक द प्रेसिडेंसी फ्रॉम फ्रांस, ठीक है, एंड देन इंडिया पास्ड इट्स प्रेसिडेंसी टू इजराइल, ठीक है। ऐसी सेम मैकेनिज्म G20 में भी होती है, ठीक है। G20 में क्या होता है दैट द प्रीवियस प्रेसिडेंट country will guide, will tutor, will mentor the next presidency country, ठीक है, and then that particular country will guide its next presidency country, ठीक है। It's like a relay race, ठीक है, 3 जन दौड़ रहे हैं, पहला बैटन देता है दूसरे को, दूसरा देता है तीसरे को, ठीक है, बट इन टर्न्स दे विल मेंटर ईच अदर, ठीक है। Am I making sense here? What I am trying to say? ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ओके, हाँ, मैंने आयरलैंड की बात, ओके, यस यस, डेफिनेटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, फ्रांस टू इंडिया एंड इंडिया टू आयरलैंड, ठीक है, यस, आयरलैंड इज करेक्ट। ये लिख लो that India will be holding G20 presidency from December 2022. So basically right now India is being mentored, ठीक है, इंडिया को मेंटरिंग मिल रहा है अभी, ठीक है, and India is a part of Troika which precedes current and incoming G20 presidencies, ठीक है। लिख लो, G20 was formed in 1999 and since 2008 वो लोग साल में एक बार पार्टी करने के लिए डेफिनेटली मिलते हैं। हमारे जैसा नहीं होता है कि गोवा का प्लान कभी बने ही नहीं, ठीक है। ये लोग गोवा में डिसाइड करते हैं पार्टी करेंगे तो करते ही है, तो थोड़ा इंस्पायर रहने का हमारे लीडर्स से, ठीक है। लिख लो, चलो चलो पार्टी करने के लिए चलो यार, लेकिन अभी तो मेरे को बहुत डर लगता है, ठीक है। द सेकंड रेड सेंटेंस इज द सेम थिंग जो मैंने आपको बताई, दैट एवरी कंट्री mentors the upcoming president country, ठीक है। So अभी इंडिया is getting mentored because in next year India will become president. So इंडिया को ट्यूटरिंग मिलना चाहिए इन दिस ईयर 2021। फिर नेक्स्ट ईयर इंडिया विल बी मेंटरिंग एनी अदर कंट्री, ठीक है। सो बेसिकली इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ट्रॉइका, ठीक है। ये जो मैंने आपको सेटअप बताया दैट इंडिया विल बी गेटिंग मेंटर्ड राइट नाउ बाय सम एक्स कंट्री एंड नेक्स्ट ईयर इंडिया विल बी मेंटरिंग एनी वाई कंट्री। सो इंडिया दो कंट्री को एक साथ डील कर रहा है। इंडिया इज गेटिंग मेंटर्ड दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर इंडिया विल बी मेंटरिंग एनी अदर कंट्री। सो बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ the country that become troika. Troika means 3. Am I clear guys? पता चला troika क्या है? 3. Troika means 3. Okay guys, चले आगे। एवरीबॉडी लिख लिया सबने? चलो आगे चलेंगे।
इस टाइम अभी प्रेसिडेंट कौन है G20 का? इटली। इटली, इटालियन फूड, ठीक है। इटली इज द प्रेसिडेंट, ठीक है। चलो, उसके पहले सऊदी अरेबिया था, बाद में इटली, बाद में इंडिया, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। दिस इज अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ न्यूज, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, ठीक है। देखो, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड, ठीक है। ये बेसिकली है क्या? बेसिकली इंडिया इज ट्राइंग टू जनरेट क्लीन एनर्जी so that we can emit less carbon and we can achieve the goals of Paris climate deal. India as a country can achieve the goals of Paris climate deal if the energy generated by India is of clean source, ठीक है। So basically offshore wind मतलब wind terminals created on sea, उससे जो विंड जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड ऑफशोर विंड, ठीक है। नाउ इन द वर्ल्ड डेनमार्क इज वन सच कंट्री who has expertise in the field of offshore wind technology. So basically the government of India and Denmark has signed a deal that both the countries will help each other for the development of offshore wind. For that purpose, an institution which is called Center of Excellence on offshore wind is created. ठीक है, लिख लो। देखो, अगर आप लोग मेरी बात सुन के समझ नहीं पा रहे हो देन मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सो पे अटेंशन। मैंने आपको क्या बताया? दैट प्रेसिडेंसी होना अलग बात है, मीटिंग हेल्ड करना अलग बात है। इंडिया प्रेसिडेंट कब बन रहा है G20 का? इन द ईयर 2022, लेकिन हम मीटिंग कब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? अगले साल, ठीक है। सो ये दोनों चीज अलग अलग है। आई होप ऋषित आपको पता चल गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। आप जो कह रहे हो इंडोनेशिया में मीटिंग होगी, लेकिन इंडोनेशिया प्रेसिडेंट नहीं बना, ठीक है। दोनों में फर्क है। हिंदू में आर्टिकल आया था इसके रिगार्डिंग, अच्छा, ठीक है। लिख लिया गाइस? लिख लो लिख लो। 2021 की मीटिंग होगी इटली में, 2022 की होगी इंडोनेशिया में, लेकिन तब इंडिया प्रेसिडेंट तो बन गया होगा G20 का इन द मंथ ऑफ दिसंबर, 1 दिसंबर से, ठीक है। और 2023 में मीटिंग होगी इंडिया में। अरे अब लिख लिया सबने, चले आगे। अच्छा एक बात बताओ, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, जजमेंट नहीं कह सकते, दे मेड अ कमेंट, दे मेड अ रेफरेंस that right to protest is a fundamental right, that is all right, but you cannot stop or block the traffic or commutation of any citizens, ठीक है। So my only question is that right to protest is guaranteed by which article of the Constitution of India? Simple question है एकदम। The answer is Article 19, ठीक है। 20 नहीं, 21 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 19, ठीक है। वेरी गुड।
मेजोरिटी ऑफ यू हैज गिवन द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। अभी आज हमने G20 के बारे में पढ़ा, लेकिन आपका दिन खराब है, आज हमें ब्रिक्स समिट के बारे में भी पढ़ना है। एक्चुअली ऑनेस्टली मैं एक बहुत अच्छा फोटो डालना भूल गया, मैं डालने वाला था, मैंने आप लोगों को याद भी किया था जब मैं पीपीटी बना रहा था। वो हमारे प्यारे से मोदी जी का फोटो था, एकदम अच्छा, सफेद सफेद दाढ़ी, एकदम अच्छे बाल, और स्किन तो मतलब पूछो मत। अपने को मेरे को मेरा स्किन रूटीन देख के थोड़ा टेंशन आ गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा फोटो था उनका, ठीक है, लेकिन मैं डालना भूल गया अंदर। सो बेसिकली 13th ब्रिक्स समिट वाज रिसेंटली हेल्ड, ठीक है, एंड इंडिया इज द प्रेसिडेंट, इंडिया विल बी द चेयर ऑफ द करंट ब्रिक्स समिट, ठीक है। दिस वाज द सेकंड टाइम दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी विल चेयर द ब्रिक्स समिट, ठीक है। 2016 में उन्होंने गोवा में पार्टी की थी ब्रिक्स के लिए, ठीक है। The first time he was the chair, and now the second time he became the chair of BRICS summit, ठीक है। What was the theme of the summit? The theme of the summit is BRICS Act 15. Basically, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के 15 साल पूरे हुए हैं, ठीक है, इसके लिए थीम रखा है ब्रिक्स एक्ट 15। व्हाट इज द थीम आगे? इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ठीक है। फिर कौन से बड़े बड़े भाई लोग बैठे थे चाय पीने? तो अपने पुतिन साहब है, बोल्सोनारो साहब है, जी जिनपिंग साहब थे, और साइरिल रामफोसा भी थे, ठीक है, लिख लो। इसके पीछे इंडिया इज चेयर दिस टाइम। तो इंडिया ने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रपोज किए हैं, ये इसके पीछे के पीपीटी में है, ठीक है। पहले इतना लिख लो, ठीक है। चाय भाई तो पीना ही पड़ेगा ना यार, ठीक है। अभी अहमदाबाद में होते पार्टी करते तो सब कुछ कहीं आजू बाजू से देखना पड़ेगा। चाय तो मतलब यार अपने नहीं पिलाया तो कैसे चलेगा, ठीक है। अपने मोदी जी बैठे हैं यार, ऐसा थोड़ी। ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी, अपने को नहीं आता इतना। रिटर्न, शुड आई गो अहेड? याद रखना दैट लास्ट टाइम द ब्रिक्स समिट which held in India was in 2016। कहां पे? गोवा में, ठीक है। और अभी 5 साल बाद वापस मीटिंग हुई है, बट दिस मीटिंग वाज इन एन ऑनलाइन फॉर्मेट, ठीक है, वर्चुअली। फेस टाइम किया होगा एक दूसरे ने सबको, ठीक है, ग्रुप में। चलो आगे चलते हैं। For its chairship at BRICS, India has 4 priority area. Very important. Understand. You have to write this down. Why? Because India chair है. So बहुत important बात होती है। आप पिछले 10 दिन का इंडियन एक्सप्रेस उठा लो, कुछ ना कुछ ब्रिक्स के बारे में आर्टिकल आते हैं। सो हमें ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड दिस ईयर इट इज मोर इम्पोर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज द चेयर। तो क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इंडिया हैज आउटलाइन 4 प्रायोरिटी एरिया। वन इज मल्टीलेटरल सिस्टम, ठीक है। मल्टीलेटरल सिस्टम मतलब जो यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिस्टम्स में जो कुछ प्रॉब्लम है उसको रिफॉर्म करना चाहिए। काउंटर टेररिज्म, आपको पता है, टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके हाउ वी कैन अचीव अवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय 2030, उसके बारे में कुछ बातें की है। एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ाने की बात की है। किसने बात की है? इंडिया ने की है। These are the 4 priority area that was emphasized by
इंडिया इन इट्स चेयरमैनशिप एट ब्रिक्स। ठीक है, 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लो। यस क्रिश। वंश, आपका क्या क्वेश्चन है? टेररिज्म इज अ वर्ड एसोसिएटेड विथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है अभी, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, वो मैं अभी आपको कैसे बताऊं। बेसिकली द डेवलपमेंट that occurred because of industrialization was purely based on the extractions of mineral resources, of environmental resources. ठीक है, so it has led in the degradation of the environment, ecology, wildlife. The climate change is because of the developmental process and path which was not sustainable. ठीक है, sustainable का मतलब क्या है? That you have to do development in such a way that your coming generations don't have to pay for that development that you had. बेसिकली मेरे पापा, सपोज फॉर एन एग्जांपल, हमारे प्रीवियस जनरेशन के लोगों ने जो डेवलपमेंट किया है, the way they followed the development path, that has led to the climate change. अभी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर और फादर ने जो डेवलपमेंट परसू किया है, उसके कारण राइट नाउ आई एम पेइंग द प्राइस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सो बेसिकली आफ्टर 2000 the scientific community realized this, that we developed in such a way that is not sustainable. So now our developmental plan should be in such a way that we have to make sure that our future generation don't pay the price for development. पता चल गया? ठीक है, you have to develop yourself, your country, your locality in a sustainable way. और दुनिया में सबसे सस्टेनेबल, अगर सबसे ज्यादा सस्टेनेबल कोई इंसान है मेरे हिसाब से, जो मैंने मेरी लाइफ में देखा है, दे आर द ट्राइबल पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हमारी तरह उनको एसी नहीं चाहिए, हमारी तरह उनको पेट्रोल नहीं चाहिए गाड़ी में डालने के लिए। ठीक है, हमारी तरह उनको बर्गर पिज्जा नहीं चाहिए खाने के लिए। ठीक है, ये सुबह उठे, झाड़ के नीचे आजू बाजू एप्पल खा लिया, आजू बाजू घूम के आए, रात को सो गए, उधर बात खत्म, मजा नहीं लाइफ। ठीक है, ना ब्लड प्रेशर होता है, ना डायबिटीज होती है उनको। ठीक है, कुछ नहीं होता उनको, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग झाड़ को नहीं काटते हैं। अगर झाड़ को नहीं काटोगे तो ठंडक अपने आप रहती है। ठीक है, सो दे आर द पीपल हु लिव इन सिंक विद एनवायरमेंट एंड नेचर। ठीक है, सो दैट इज अ सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। ठीक है, ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? पता चल गया? कैन आई एक्सप्लेन द फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट? बेसिकली मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स, जो आप समझ लो दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द यूनाइटेड नेशन is not able to achieve its target. They are not able to fulfill their commitments. Why? Because there are some drawback in this multilateral institution. ऐसे सारे इंस्टीट्यूशन में, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, they have issue of poor governance. They have issue of influence of developed countries. ऐसी जगह पे डेवलपिंग कंट्रीज को वो लोग साइडलाइन कर देते हैं। सो इन इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना, दैट इज द प्रायोरिटी ऑफ इंडिया। एंड एनहांसिंग पीपल टू पीपल एक्सचेंज, इसका बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं, तालिबान को बुलाने का इंडिया में कि देखो भाई,
ऐसे अच्छी तरह से रहो, औरतों की इज्जत करो, ये कल्चर को है, वो कल्चर बहुत अच्छा होता है, उसे अच्छे से फॉलो करो, बट इन द नेम ऑफ कल्चर डोंट टॉर्चर एनीबॉडी, सो दैट इज व्हाट कॉल्ड पीपल टू पीपल एक्सचेंज। ठीक है, ऐसा, ऐसी अच्छी अच्छी बातें करना है। ठीक है, हम लोगों को सिखाए कि देख भाई आराम से रहना सीख, उसे कहते हैं पीपल टू पीपल एक्सचेंज। ठीक है, ऐसी सारी बातें। ठीक है, अभी मैं यूएसए गया तो मेरे को पता चला कि मैकडोनल्ड्स है, सबवे है। ठीक है, यूएसए वाला यहाँ पे आएगा तो उसको पता चलेगा कर्नावती की दाबेली है, जय भवानी है। तो पीपल टू पीपल एक्सचेंज से भाईचारा बढ़ता है। ठीक है, ऐसी बातें, ऐसी अच्छी अच्छी बातें, पता चल गया ना अभी? वेरी गुड, अब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, व्हाट कैन आई डू दिस इन एग्जाम? ऑनेस्ट का पाव भाजी, अरे ऑनेस्ट का पाव भाजी तो यू विल गेट इन यूएसए ऑल्सो। ठीक है, तो वो तो चलेगा, यूएसए में हर जगह मिलता है आजू बाजू। ठीक है, और विमल माणिकचंद के पैकेट भी मिलते हैं रास्ते में, मेरे को कभी कभी लग जाता है अरे ये तो अपने गुजरात में आ गए वापस। ठीक है, तो वो तो सब चलता है, रजनीगंधा का भी बॉक्स मिलता है वहां पे कभी कभी, तो वो तो बहुत कॉमन चीज है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अभी। पीपल टू पीपल एक्सचेंज इज वेरी गुड। ठीक है, वो करना ही चाहिए, प्रमोट करना ही चाहिए। ठीक है, आपको पता नहीं होगा कितने सारे अफगान नेशनल्स हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं। हमिद करजाई, इवन अशरफ गनी, दे हैव स्टडीड इन इंडिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। राज्यसभा, भाई राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 250 मेंबर्स। ठीक है, और उसमें से प्रेसिडेंट कितने नॉमिनेट कर सकता है फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर? कितने? 12। वेरी गुड। 12। ठीक है, फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर। ठीक है, 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और उनका इलेक्शन कैसे होता है? अगर किसी को राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? यस मान्या, यू आर राइट, वेरी गुड। जो स्टेट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनके एमएलए। ठीक है, एम आई क्लियर गाइस? ठीक है, दिस आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट राज्यसभा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वो ऑर्डर ऑर्डर करता है ना ऊपर कुर्सी पे बैठ के, शांति बनाए रखिए, कौन होता है चेयरमैन? एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इन हिज एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी। ठीक है, एक्स ऑफिशियो का मतलब that by the virtue of him being the vice president of India, he automatically becomes the chairman of Rajya Sabha. ठीक है, एवरीथिंग क्लियर? चलो आगे चलेंगे। चाइना एंडोर्सेस तालिबान गवर्नमेंट। ठीक है, we don't have to remember much, but we need to have a brief idea that China has endorsed the Taliban government and China has provided a help of $31 million. ठीक है,
to the new caretaker government, ठीक है, of the Islami Emirati of Afghanistan, ठीक है. मान्या कौन है प्रेजेंट चेयरमैन कैबिनेट मिनिस्टर? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है मान्या. वेंकैया नायडू, ही इज वाइस प्रेसिडेंट, ही कैन नेवर बी अ कैबिनेट मिनिस्टर. वो पहले थे, अभी नहीं है. वेंकैया नायडू, he was a minister in the previous government, but once he became the vice president of India, he is no more a minister, ठीक है. और स्वयं आपने क्या लिखा है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, दे कैन नॉट वोट इन द राज्यसभा इलेक्शंस, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ एमएलए, सिर्फ और सिर्फ एमएलए, ठीक है. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट वोट इन राज्यसभा इलेक्शंस, ठीक है. हो गया एवरीबॉडी. चाइना तो हेल्प करेगा. तालिबान हैज सेड ओपनली दैट वी सी चाइना एज अवर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, हमारे अच्छे मित्र हैं. चाइना बेसिकली आर कंडक्टिंग genocide on a minority community who are themselves Muslim, which is called Uyghur Muslims. लेकिन तालिबान, you look at the double-sided approach of Taliban. They straight away pointed out that we can speak for the people of Kashmir, but they did not spoke that they will raise the issue of Uyghur Muslims. ठीक है? This is the double-sided international politics that you can see, ठीक है. चाइना wants everything from everywhere, ठीक है, जितना भी है हमको सब कुछ चाहिए. अगर आप कश्मीर के बारे में बोलना चाहते हो तो चाइना के यूगुर मुस्लिम्स के बारे में भी बोलो भाई, ठीक है. ऐसा चीटिंग थोड़ी करने का है यार, ये तो गलत बात है ना. लेकिन चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा. चलो गाइस, गोइंग अहेड, ठीक है. यूगुर मुस्लिम्स आर एसोसिएटेड विद चाइना, ये पता होना चाहिए, ठीक है. इट इज अ गुड क्वेश्चन बिकॉज ऐसा रोहिंग्यास के बारे में भी पूछा था. लाइक रोहिंग्यास आर एसोसिएटेड विद विच कंट्री? सो इट वाज विद म्यांमार, ठीक है. सो यू शुड आल्सो हैव नो दिस दैट यूगुर मुस्लिम्स आर अ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन चाइना, ठीक है. चलो आगे चलेंगे. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. भारत बायोटेक्स नेजल वैक्सीन फॉर कोविड-19. हम सब ने कोविशील्ड लगाई, ठीक है, लेकिन कोवैक्सीन डेवलप किसने किया था? भारत बायोटेक, ठीक है, जिसने हमारी इंडिजिनसली वैक्सीन डेवलप की है, ठीक है. नाउ रिसेंटली दे गॉट परमिशन to conduct trials of a new vaccine which is called BBV154. Now this is the intranasal vaccine, ठीक है, and it is non-invasive needle free vaccine, ठीक है. Non-invasive का मतलब है that you will not be injected with this particular vaccine, ठीक है. Am I clear guys? सो इसके ट्रायल अभी चल रहे हैं एंड इट इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है, जो कि इंट्रानेसल है. दिस वैक्सीन विल बी प्रोवाइडेड इन योर नोज, थ्रू योर नोज, ठीक है. दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड इंट्रानेसल वैक्सीन. लिख लो.
what was the name of the vaccine that was developed by Zydus Cadila? Zydus. ठीक है, which was the first plasmid based vaccine. प्लास्मिड बेस्ड वैक्सीन सबसे पहली थी, है वो. वेरी गुड गाइस. ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर, सो हमें इतना पता होना चाहिए. ठीक है, इफ अ सिंपल क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट भारत बायोटेक की नेसल वैक्सीन जो है उसका नाम क्या है, तो हमें पता होना चाहिए BBV154. ठीक है, एंड इट इज अ नीडल फ्री नॉन इन्वेजिव वैक्सीन. और मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है ZyCoV-D, ZyCoV-D. ठीक है, वेरी गुड. इट इज द फर्स्ट DNA प्लास्मिड बेस्ड वैक्सीन. ठीक है, ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? लिख लिया आप सबने? एवरीबॉडी? चलो. The inner layer of your nose are called mucosa. ठीक है, आई थॉट इतना तो पता होगा यार, 8th-9th में साइंस में तो आया होगा ना. म्यूकस होता है, म्यूकोसा होता है अंदर. ठीक है, चलो आगे चलेंगे. दिस इज द सेम न्यूज दैट वी टॉक्ड बिफोर इन द सेकंड स्लाइड. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे. ठीक है, कहां पे बनाया गया था? नेशनल हाईवे 925A इन बारमर, राजस्थान. ठीक है, ये बनाया किस किसने है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. GHV India Private Limited. This is the firm that has implemented this project, and it was done under the supervision of Indian Air Force and National Highway Authority of India, NHAI. ठीक है, the total length of the facility is 3.5 kilometer. ठीक है, लिख लो. This is some good initiative because the district of Barmer is parallel with international border with Pakistan. ठीक है, yes, Cuba is the first country to vaccinate toddlers, छोटे छोटे बच्चे को. ठीक है, हो गया? Should I go ahead guys? Everybody? Appreciate, थोड़ा जल्दी लिखो. Done? Okay, okay. चलो चलो guys, going ahead. Am I clear? ठीक है, चलो. हाँ, कॉन्ग थॉन्ग, इसके ऊपर बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था इन इंडियन एक्सप्रेस. ठीक है, नाउ दिस particular village, it has been selected for by the Ministry of Tourism for the United Nations World Tourism Organization Best Tourism Award. ठीक है, Best Tourism Village Award. Now what is the unique thing about this particular news, this particular village is that ये ऐसी जगह है जहां पे हर एक लोग की अलग आइडेंटिटी है, but not by name but by tune.
बेसिकली मुझे यहाँ पे वंश को बुलाना है, तो मैं उसकी कुछ अलग ट्यून गाऊंगा जिससे वो उसको पता चलेगा कि आई एम रिफरिंग टू वंश। फिर मैं कुछ और अलग ट्यून बात करूंगा तो पता चलेगा कि मैं ऋषिक को बुला रहा हूँ, या तो फिर मैं कोई और ट्यून गाऊंगा तो पता चले मैं खुशी को बुला रहा हूँ। सो ये ऐसा विलेज है, इट इज कॉल्ड एज व्हिstling विलेज, बिकॉज यहाँ पे एवरीवन कॉल्स ईच अदर बाय अ यूनिक whistle और बाय अ यूनिक मेलोडी। ठीक है, सो बहुत ही बढ़िया हेरिटेज है, ठीक है, of this particular village. That is the reason that it has been nominated along with two other villages. One is Latpura Khas in Madhya Pradesh and one is Pochampally in Telangana. ठीक है, लिख लो। पोचामपल्ली की साड़ी बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है पूरे इंडिया में। ठीक है, पोचामपल्ली इक्कत साड़ीज जो होती है सिल्क की, बहुत ही फेमस है, बहुत। हो गया, लिख लिया। आप लोग तो यार ठंडे हो गए यार, थक गए क्या यार? 1.5 घंटे में आपका ऐसा हो जाता है यार, ऐसा कैसे चलेगा यार? पोचामपल्ली इज फेमस फॉर इट्स साड़ी, सिल्क साड़ी, इकत साड़ी। ठीक है, दैट आई नो। इकत स्टाइल इज वेरी फेमस। ठीक है, इतनी महंगी महंगी साड़ी आती है, मैं तो कभी प्राइस देख के घबरा गया था एक बार। ठीक है, मतलब यार, लेकिन अच्छा होता है। ठीक है, ओके गाइस, शुड आई गो एड? लिख लिया एवरीबॉडी? चलो गोइंग एड। ये जो मैंने बताया वो सेम है, आप एक बार पढ़ लो। इट इज लोकेटेड इन द खासी। ठीक है, खासी जो एरिया है, खासी इन मेघालय। ठीक है, दिस प्लेस इज लोकेटेड इन मेघालय। जो हमने पहले कोंगथोंग की बात की, इट इज लोकेटेड इन मेघालय, इन खासी। ठीक है, खासी आर अ प्ले, खासी इज द नेम ऑफ हिल्स। ठीक है, इन मेघालय। पढ़ लो एक बार, 10 सेकंड देता हूं, फिर आगे चलेंगे। ओके गाइस, चलो आगे चल रहा हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, हर एक लोगों की यहाँ पे अलग आइडेंटिटी है, बट इन अ फॉर्म ऑफ विसल। ठीक है, याद भी पता नहीं कैसे रहता होगा इनको, अपने से ज्यादा होशियार लगते हैं वहां पे लोग। ठीक है, हाँ, गारो, खासी एंड जैतिया आर द फेमस हिल्स ऑफ मेघालय। ठीक है, देखो, ये एक बहुत ही बड़ी खतरनाक न्यूज है। इसकी हिस्ट्री इतनी लंबी है कि मुझे कुछ पूछना मत। सिर्फ जो फैक्चुअल न्यूज है यहाँ पे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा पूछोगे ना तो मेरे को आधे एक घंटे का नया लेक्चर लेना पड़ेगा किसी दिन। ठीक है, ये बहुत ही ट्रिकी न्यूज है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दे रिसेंटली साइंड अ डील with one of the insurgent groups that was prevalent in Nagaland. ठीक है, ये कौन सी डील साइन की है? सीज फायर अग्रीमेंट साइन किया है कि ना तुम झगड़ोगे हमारे साथ, ना हम झगड़ेंगे आपके साथ। ठीक है, इट इज कॉल्ड अ सीज फायर अग्रीमेंट। ये किसके बीच में साइन किया गया है? यूनियन होम मिनिस्ट्री एंड द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। और इस नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के बहुत सारे फैक्शंस है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे फैक्शंस है। ठीक है, उसमें से दो फेमस सेगमेंट्स है। एक है खापलांग फैक्शन, खापलांग, और एक दूसरा है जिसे हम इसाक मुआ कहते हैं, इसाक मुआ। ये बहुत सारे फैक्शंस है, लेकिन ये दो सबसे ज्यादा वायलेंट एंड प्रोमिनेंट फैक्शन है। One is called Khaplang and other called is
इसाक मूविया, ठीक है। तो अभी होम मिनिस्ट्री ने किसके साथ डील साइन की है? सीज फायर एग्रीमेंट फॉर अ वाइल, 1 साल के लिए, खापलांग सेक्शन लेड बाय निकी सुमी, ठीक है। लिख लो, निकी नाम है लेकिन लड़का है, ठीक है। निकी निकी लड़की नहीं है, नीला निकी वाली, ठीक है। यहाँ पे निकी लड़का है, ठीक है, लिख लो। पता चल गया क्या है न्यूज एवरीबॉडी? अगर डिटेल्स पूछोगे तो मेरे को आपको 1945 से शुरू करवाना पड़ेगा, इसलिए मत पूछना यार, बहुत दर्द भरी कहानी है। 1945 बताना पड़ेगा, 53 बताना पड़ेगा, 63 बताना पड़ेगा, ठीक है। तो नागालैंड के साथ झगड़ा काफी पुराना है हमारा, ठीक है। ब्रीफ नहीं कर सकता है। बेसिकली ये सारा का सारा प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय नन अनदर देन द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। वो ब्रिटिशर्स ने आके अपने हिसाब से, इनको वैसे कुछ पता चलता है नहीं, सिर्फ उनको पैसा कमाना अच्छा आता है, वो बात अलग है। लेकिन वो लोग कुछ भी बॉर्डर बना देते थे, ठीक है। कहीं से भी मर्जी चाहे वो लोग बॉर्डर बना देते थे कि ये भाई इलाका हमारा, तुम लोग तुम्हारा देख लो। अभी मेरे घर के बीच में से अगर कोई बॉर्डर खींच ले तो मेरा और मेरे पड़ोसियों का तो फिर संबंध चेंज हो जाएगा, द रिलेशनशिप चेंजेस। अभी नागालैंड उन्होंने जो बनाया है, नागालैंड, द पीपल ऑफ नागा ट्राइब, they used to stay in a very very big area. They were staying in Arunachal Pradesh, they were staying in Assam, they were present in Manipur, Tripura, even in Myanmar. लेकिन इनको फिर छोटा सा नागालैंड बना के दे दिया है, तो इनको फिर गुस्सा आ जाता है कि हमारे परदादा हमारे परदादा हमारे परदादा तो इतने बड़े एरिया में रहते थे, दिस इज अवर ट्रेडिशनल लैंड, बट बिकॉज ऑफ योर whims एंड फैंसीज टुडे वी आर सेपरेटेड फ्रॉम आवर ओन ब्रदरहुड, ठीक है। ये वाला इश्यू है। सो द इंसर्जेंट्स ऑफ नागालैंड, जो नागालैंड के जो ग्रुप्स है, दे ऑलवेज डिमांड अ ग्रेटर नागालैंड। ग्रेटर नागालैंड मीन्स दे आर डिमांडिंग that we want our own state which will have parts of Myanmar, which will have parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Tripura, Manipur and even Mizoram. पता चल गया इश्यू क्या है? ये बेसिकली आप लोगों को कुछ पता होगा कि कुछ कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमको पाकिस्तान भी चाहिए, हमको अफगानिस्तान भी चाहिए, बिकॉज 2-3 हजार साल पहले हमारे मम्मी पापा लोग वहां पे रहते थे। ये वो वाला सेम इश्यू है, ठीक है। तो ये लोग कुछ भी, ये काम नहीं होता ना जिंदगी में करने के लिए, इसलिए ऐसा सब बैठ के सोचते हैं ये लोग, ठीक है। अभी अपने को तो सुबह पता चला कि अमूल गोल्ड का भाव महंगा हो गया है, तो अपने को तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन ये लोग क्या है, जो लोग फ्री होते हैं ना, ये लोग ऐसी सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? अभी मेरे को तो पेट्रोल से लेना देना है कि उसका भाव मत बढ़ाओ यार, लेकिन ये फिर हमारे जैसे बच्चों को गुमराह करने के लिए उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं कि पहले हम यहाँ तक रहते थे तो हमें वापस रहना है, अरे वो करना है। अभी मेरे को प्रॉब्लम है कि पेट्रोल कौन डालेगा गाड़ी में यार लेकिन ये लोग मेरे को कोई दूसरा ही प्रॉब्लम दिलाते हैं, याद दिलाते हैं, ठीक है। ये पॉलिटिशियंस ये सब करने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअली में पढ़े लिखे हो तो आपको पता चलना चाहिए व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स इमेजिनरी प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम्स हमेशा अलग होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फैक्चुअल न्यूज है, मेरा कुछ समझाना नहीं है इसमें। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, मीडिया को तो देखने का ही नहीं, उसको तो बंदी रखने का। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2021, ठीक है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? सितंबर 8, 2021, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर? लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, ठीक है। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है? आप समझ लो दैट इन अर्बन एरियाज वी ऑल आर वेल कनेक्टेड डिजिटली through our smartphones, through our laptops, but in rural area the connectivity is not that good, ठीक है।
That is what, that is creating a divide between the urban and the rural people. The same divide can exist between our grandparents and grandsons जो हम हैं, उनको नहीं आएगा एक स्मार्टफोन ऑपरेट करने में, लेकिन हमें आता है. सो दैट इज अगेन अ डिवाइड. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड. ठीक है, उसको कम करने का थीम है इस साल का इंटरनेशनल लिटरेसी डे. ठीक है, मजा आया, पता चल गया. नहीं नहीं नहीं, यूनेस्को इसे ऑर्गेनाइज करता है, उतना पता होना चाहिए. कब ये शुरुआत हुआ वो याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मैं तो जस्ट फॉर अ रीड, जस्ट फॉर अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ये चीज थोड़ी यहां पे रखता हूं. ठीक है, ओके गाइस, गोइंग अहेड नाउ. लिख लिया आई होप आप सबने. ठीक है, चलो आगे चलेंगे. Very important personality and a very huge initiative that has been launched by the Tamil Nadu government. E.V. Ramaswamy Periyar is considered as one of the most prominent social reformer in India. ठीक है, ये बहुत ही बड़े सोशल जस्टिस के प्रोपोनेंट थे, सोशल रिफॉर्मर थे. ठीक है, he is associated with one of the most famous movement that was launched by him, which was called self-respect movement. ठीक है, self-respect movement. ठीक है, now understand one thing, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना. आप लोग जो आज पार्टी देखते हो, द्रविड़ा मुन्नेत्रा खासगम, सुना है डीएमके, जिसके एम के स्टालिन अभी चीफ मिनिस्टर है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ठीक है, वो पार्टी बाद में फॉर्म हुई थी आफ्टर अ स्प्लिट. पहले एक पार्टी बनाई गई थी बाय पेरियार. द नेम ऑफ दैट पार्टी वाज कॉल्ड जस्टिस पार्टी. ठीक है, he became the head of the justice party. After a while he renamed the justice party as द्रविड़ा खासगम. डीएमके नहीं, डीएमके नहीं, सिर्फ और सिर्फ डीके, द्रविड़ा खासगम इन 1944. आगे चल के 1949 में दैट पार्टी स्प्लिट और बना आपका डीएमके, जो एम के स्टालिन आज उसके लीडर है. ठीक है, कब हुआ ये? 1949 में. He is also known as the father of Dravidian movement. Very, very, very important. ठीक है, who founded Dravida Khasgam. ठीक है, he is the father of Dravidian movement. ठीक है, Dravidian movement याद रखना और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी याद रखना है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एसोसिएटेड विद पेरियार. ठीक है, नहीं, डीएमके पार्टी का बाद में अगेन स्प्लिट हुआ and that led to the formation of AIADMK. सबसे पहले जस्टिस पार्टी थी, बाद में डीके बनी, द्रविड़ा खासगम. स्प्लिट हुआ, बाद में डीएमके बना. डीएमके और ज्यादा स्प्लिट हुआ और फिर वो बना AIADMK. ठीक है, डीएमके का फुल फॉर्म है द्रविड़ा मुन्नेत्रा खासगम. ठीक है, द्रविड़ा मुन्नेत्रा खासगम लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट. AIADMK, ऑल इंडिया कुछ था, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुन्नेत्रा खासगम. ठीक है, that was a party which is founded by this one famous person. मैं उनका नाम भूल गया. He's a very prominent, very big prominent leader of South India. पता नहीं मैं उनका नाम क्यों भूल गया.
He was the mentor of Jayalalitha. Yes, MGR, MGR. Yes, Siddhant, thank you. MGR, MGR was the founder of AIADMK. ठीक है, and Jayalalitha, Jayalalitha was tutored and mentored by MGR. ठीक है, और द्रविड़ा मुन्नेत्रा खासगम मेरे को तमिल नहीं आता है, ठीक है, सीख लूंगा खुशी, फिर आपको बता दूंगा, ठीक है, थोड़ा किसी के वो पकड़ के मैं सीख लूंगा, मेरे को नहीं आता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अभी। देखो, तालिबान अपॉइंट्स न्यू कैबिनेट, ठीक है, इसमें से ऊपर के 4-6 ये सारे मिनिस्टर के नाम आपको याद रखने की मेरे हिसाब से कोई जरूरी नहीं लगता है मुझको, लेकिन मुझे पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप देख लो, फैक्चुअल है, आपको जो मिनिस्टर इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग लिख लो, ठीक है। ये मुल्ला हसन अखनुद, ही इज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर याद इंपॉर्टेंट है, ये सिराजुद्दीन हक्कानी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वांटेड टेररिस्ट है, लेकिन अब भाई साहब मंत्री जी बन गए हैं, ठीक है। आपने अगर हक्कानी नेटवर्क का नाम सुना हो, विच इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रेवेलेंट इन द रीजन ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, हक्कानी नेटवर्क, ये भाई साहब उसके हेड है, ठीक है। हक्कानी नेटवर्क्स ऑपरेट फ्रॉम क्वेटा, बलूचिस्तान, ठीक है। ये भाई साहब उसके हेड है, लेकिन अब मंत्री जी बन गए हैं। अभी मेरे को भी कभी कभार तो लगता है कि ये मंत्री बनने का रास्ता इधर से ही होता है, ठीक है। हमारे भी ले लो। डोंट गेट टू हैप्पी व्हेन यू सी दैट तालिबान हैव दिस मैनी murderers or whatever you want to say, because 47% of the Indian parliamentarians have serious criminal charges against them. 47% of the Indian parliamentarians, ठीक है। सो एक पुरानी कहावत है कि उनके घर पे पत्थर नहीं फेंकते जिनका खुद का घर शीशे का बना हुआ हो, ठीक है। ये वाली कहानी है। अभी हम भी बहुत कुछ इतने जोरदार नहीं है, 47%। और ये सीरियस क्रिमिनल चार्जेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। सीरियस में क्या आता है, डकॉइटी, रेप्स, मर्डर्स, ऐसे चार्जेस की मैं बात कर रहा हूँ। अभी छोटे मोटे का मैं गिनूंगा तो बढ़ जाएगा और ज्यादा, ठीक है। लिख लो फटाफट। एडीआर करके बहुत अच्छा एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। दे पब्लिश ऑल दिस आर्टिकल्स इन वेरी मच डिटेल। कौन से एमपी का कौन सा केस है, क्या है, सब, ठीक है। ऑल द नेम्स याद रखो ना रखो आपके ऊपर है, अगर याद कर सकते हो तो इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट नेम आप याद कर सकते हो, दैट बद्री इज फाइनेंस मिनिस्टर, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, ही इज द फाइनेंस मिनिस्टर। वरुण धवन को याद रख के आप कर सकते हो कुछ, ठीक है। हक्कानी तो याद रह जाएगा, हक्कानी के साथ मुताकी को याद कर लेना, एक को इंटीरियर बनाया एक को एक्सटीरियर बनाया है, तो ऐसा कुछ याद करके आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया? शुड आई गो अहेड? सुप्रीम लीडर कौन है वो तो हमने लास्ट टाइम बात कर ली, ठीक है। तीर्थराज जल्दी, सुप्रीम लीडर उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है ईरान से, ठीक है। ये क्या है, तालिबान काफी न्यूज में रहता है, तो हमें पता होना चाहिए ये थोड़ी सी चीजें, ठीक है। इट इज बिग टैक्सिंग, आई नो, लेकिन वी कैन नॉट एफोर्ड टू मिस आउट ऑन सच न्यूज, ठीक है। क्योंकि हर एक भाई साहब के नाम पेपर में आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में रोज, ठीक है, इसके लिए। हाँ, सुप्रीम लीडर का नाम तो वो अखा जून, ये क्या है अखा, मेरे को अगर मैं पढ़ लूंगा तो याद आएगा, हिबातुल्ला अखूद ज्यादा, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, उस भाई साहब का। हाँ, वो मजदा मजदा कुछ था, ठीक है, ज्यादा अकाउंट जो भी कुछ है। चलो आगे चलते हैं। ओके गाइस, जा रहा हूं आगे, ठीक है, एवरीबॉडी, चलो।
इंडिया फर्स्ट स्मोक टावर कहां पे लगाया गया था? इंडिया का सबसे पहला स्मोक टावर काफी चर्चे में रहा था, पता होना चाहिए। फर्स्ट स्मोक टावर कहां पे लगाया था? वेरी गुड, कनॉट पैलेस इन न्यू दिल्ली। वहां पे इंडिया का सबसे पहला स्मोक टावर लगाया गया है, ठीक है। और रिसेंटली दूसरा कहां पे लगाया गया है? आनंद विहार। आनंद विहार इज अ लोकेलिटी इन न्यू दिल्ली। वहां पे दूसरा स्मोक टावर लगाया गया है। हमने टेक्नोलॉजी कहां से इंप्लीमेंट की है? द टेक्नोलॉजी फॉर दिस स्मोक टावर, उसको हमने यूएसए की कुछ कंपनी है वहां से खरीदा है, ठीक है। और यहाँ पे उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा सपोर्ट करने के लिए? दिल्ली गवर्नमेंट को हेल्प किसने की है? द आंसर इज टाटा कंसल्टेंसी एंड द नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अभी ये जो दो टावर है उसका एनालिसिस किया जाएगा, उस पे स्टडी रिसर्च किए जाएंगे दैट हाउ दिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट इज वर्किंग। और उसके ऊपर रिसर्च कौन करेगा? आईआईटी मुंबई एंड आईआईटी दिल्ली, ठीक है। ये अपने सराउंडिंग की 1 किलोमीटर तक का रेडियस का, अपने सराउंडिंग की 1 किलोमीटर रेडियस तक का एयर है उसे प्यूरिफाई कर सकता है। अपने सराउंडिंग का 1 किलोमीटर रेडियस तक का, ठीक है। 24 फुट हाइट है जो कॉनॉट पैलेस में लगाया है। कॉनॉट पैलेस में जो सबसे पहला है उसकी हाइट है 24 मीटर, सॉरी 24 मीटर, ठीक है। और जो आनंद विहार में दूसरा लगाया गया है उसकी हाइट कुछ है 25 मीटर, ठीक है। एम आई क्लियर? पता चल गया। स्मोक टावर करेगा क्या? एयर को प्यूरिफाई करेगा। एयर में से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, जो ब्लैक कार्बन है, जो पार्टिकुलेट मैटर है, उन सबको एब्सॉर्ब करेगा, फिल्टर करेगा एंड इट विल रिलीज क्लीन एयर, ठीक है। हो गया? लिख लिया? ठीक है। देन आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। बने रहने के लिए धन्यवाद, ठीक है।